So, good evening, everyone. I'm Daryl D'Souza, founder of Earthkeepers Connect, your host for this evening, which is the 14th day of the pre summit webinars leading up to the New Earth Summit in November, the second edition of India's first integrative summit on solutions for our problems in health, food, farming, and environment. I extend a warm welcome and also on behalf of our 10 Earthkeepers groups in India and overseas to our esteemed panelists of this evening, and we express our gratitude to you for taking out your time from your busy schedules to be with us and share your wisdom so that all watching this webinar and its recording later may understand how best to implement and benefit from the organic farming initiative by the state of Goa, and as it is also there in other states in the country. So that's our topic for this evening, Organic Farming Initiative by the state of Goa. And I will start by introducing our panelists to the audience. Kamal Sen, his agriculture journey started from Banaras, where he was engaged with the Ganga Basin project as a district in charge in 2016. In this scheme, they were going to organic farming near the field of the river Ganga, and this he joined as a senior district in charge at Anuppur in the scheme of PKVY. They were doing activities under that scheme for 85 clusters and gave organic certification to Anuppur farmers. Now he takes care of organic certification process in the scheme of PKVY as a senior project officer, organic farming Goa from AFC, which is Agriculture Finance Corporation Limited. Nestor Rangel, our second panelist, is a former electronics engineer from Mumbai who worked in most states of India and is now full-time into organic farming since 2008. And he runs his own farm where he has dairy, goats, a 700 mango tree orchard, and a big cashew orchard as well. His main interest is in community farming, and he started in San Esteban, and he is doing it in other villages too now. It is to stop the rampant encroachment of our agricultural land in Goa. So Miguel Braganza is the promoter of organic agriculture and has been closely associated with the Botanical Society of Goa. He completed his MSc Agri in horticulture and is specialized in fruit plants and products. He conducts training workshops in gardening and has trained others to do the same. His articles on plants appear in the Naveen Times, Buzz every Tuesday, and GT Weekender on alternate Sundays. He is also a consultant for fruit farms and eco-tourist projects in Goa and Sindhudurg, district of Maharashtra. He mentors the Agricos Alumni Association in Goa, which conducts a webinar series every Sunday afternoon. So here is our first question for the panelists. How has the organic farming initiative by the state of Goa progressed since its launch last year? Because last year most of the people came to know about it, and it was even presented by Mr. Neville Alfonso at the New Earth Summit last year. And some of you from the audience who got this invite would have seen the video also that we showed. It was there in the invite. So my question to panelists is, this initiative by the state of Goa, is it facing any hurdles in the implementation now? Because yes, there was some feedback from some farmers that there is some problem in implementation or they're not able to understand clearly. So I would like to ask Mr. Kamal Sen to first please speak on this and let us know how this initiative is progressing, because he is the person who is in charge of implementing, and especially for North Goa 200 um, uh, clusters. Yes, Mr. Sen. Thank you, sir.
मैं बोलना चाहूँगा कि अभी इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि अभी इनिशिएटिव खाली गोवा के लिए नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये इनिशिएटिव है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही हमको ज़रूरत है कि आज जो भी हमारे साथ में कोविड की जैसे बीमारी आई हुई है, अभी भी बहुत सारे लोग सारे एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग और सारा कुछ जो फॉलो कर रहे हैं, सारा बिजनेस हमारा रुका हुआ है और कहीं ना कहीं से हमारे काम पे असर आया है कोविड का। तो कोविड भी आया तो अचानक नहीं आया है, ये कहीं ना कहीं से हमारे पास में जो भी रोग लेके आया है वो हमारे खान पान पे ही है असर पड़ता है इसका। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक जब प्रोडक्ट्स तभी होगा जब हम उसको केमिकल से दूर रखेंगे। सारे हम फार्मिंग करते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट्स लाएं बाजार से वो नीट एंड क्लीन हो। हम ले तो लेते हैं दूसरे से, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हम अपने लिए प्रोडक्ट अपनाते हैं वो दूसरा ऑर्गेनिक करता हो, लेकिन नाम मात्र का करता हो और हमको देता हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमको ये चेक करना होगा कि उसके पास में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लाने के लिए पूरी स्कीम के तहत हमको ऑर्गेनिक करना पड़ता है। अभी हमारा प्रोडक्ट जो हमारी स्कीम चल रही है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, वो गोवा गवर्नमेंट के थ्रू चल रही है, जिसमें हमने अभी 200 क्लस्टर अपने बनाए हैं। 200 क्लस्टर में एक क्लस्टर में 20 फार्मर या उससे ज़्यादा होते हैं। इसमें 20 हेक्टेयर ज़मीन लेके या फील्ड लेके उसको हम आगे उसको एक क्लस्टर बनाते हैं। उस क्लस्टर के थ्रू हम जानते हैं कि जब वो ऑर्गेनिक हो जाता है उसको सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है। पहले हम फील्ड डिसाइड करते हैं कि किस फील्ड में हमको ऑर्गेनिक करना है। हम किसी फार्मर का ऑर्गेनिक नहीं करते, हम उस फील्ड को ऑर्गेनिक करते हैं ताकि जो भी फील्ड में वो उगाएगा वो ऑर्गेनिक हो जाए। इसलिए हम उसको फील्ड को चयन करते हैं, उसको फिर एक ग्राफ तैयार करते हैं, उसकी मैपिंग होती है। मैपिंग के बाद में फार्मर सेलेक्ट होता है, फार्मर का रजिस्ट्रेशन होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें किसी भी फार्मर का कोई पैसा खर्च नहीं होता है। जब एक क्लस्टर बन जाता है उस क्लस्टर को आगे टाइम टू टाइम उसका वेरिफिकेशन होता है और वो वेरिफिकेशन के लिए हमें अलग अलग टीम बनानी पड़ती है। कुछ रीजनल काउंसिल की टीम होती है, कुछ NCF की टीम होती है और कुछ डिपार्टमेंट से टीम आती है। उसमें देखते हैं सबसे पहला प्रोसेस होता है एक्सपोजर विजिट का। एक्सपोजर विजिट में हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी फार्मर्स को लेके जाते हैं, उसको दिखाते हैं ऐसी फील्ड पे जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पहले से हो रही होती है। उसको बताते हैं कि वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना है, सब कुछ उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है। वहाँ पे सीखता है वो कैसे क्या है, ज़रूरी है उसकी बातें वहाँ पे लेते हैं, उसकी क्यूरीज होती हैं। उसको लेने के बाद में हम उसको एक्सपोजर विजिट कराते हैं। एक्सपोजर विजिट जब हो जाती है हमारी आगे प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमें उसको ऑनलाइन फीडिंग कैसे करना है। तो सारा डेटा जब हम उसे गैदर कर लेते हैं फील्ड से, उस डेटा को हम ऑनलाइन फीड करते हैं। ऑनलाइन फीड करने के लिए PGS पार्टिसिपेट गारंटी सिस्टम है जो ऑनलाइन में होता है, आप देख सकते हैं उसमें PGS इंडिया के पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। उस PGS सिस्टम से हम उसको सारा डेटा लेते हैं, उसके पिछले 3 साल की हिस्ट्री भी लेते हैं फार्मर्स की कि उसने केमिकल तो कहीं नहीं यूज़ करा। अगर केमिकल यूज़ करा है तो उसको कैसे हम धीमे धीमे कम करेंगे। ये पूरा प्रोसेस जब सर्टिफिकेशन का होता है इसमें 3 साल हम टाइम लेते हैं पूरा। फर्स्ट ईयर में कितना केमिकल हैगा ये जानकारी हमें इसकी से मिल जाती है। उसके बाद सेकेंड ईयर की, इसी तरह थर्ड ईयर की। जब थर्ड ईयर होता है तो कहते हैं 3 साल में पूर्ण रूप से वो ऑर्गेनिक हो जाता है। अब इसको ऑर्गेनिक लाने के लिए, इसको एनवायरनमेंट में लाने के लिए हम हमारी टीम सारा लगे हुए हैं। मैं AFC से सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर कमल सिंह। इसमें एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत हमारी एक टीम लगी हुई है। अभी यहाँ पे हमें 200 क्लस्टर हायर किए हुए हैं जिसमें अराउंड 4,500 फार्मर्स को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देने की पूरी प्रक्रिया में कार्यरत हैं यहाँ पे। और इसमें हम चाहते हैं कि सभी किसानों को हम सर्टिफिकेशन दें और जिसमें जो भी कमियां आती हैं, जो भी किसी को ऑर्गेनिक के बारे में जानकारी लेना है या ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेना है या सर्टिफिकेशन के प्रोसेस की जानकारी लेना है, आप निसंकोच हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारी टीम आपको मिलेगी। अभी हमारे पास में 70 जोन में हमारे 65 क्लस्टर्स हैं, हमारे तिसवाड़ी जोन में 15 क्लस्टर हैं और हमारे पोंडा जोन में 60 क्लस्टर हैं और 60 क्लस्टर ही आपके पेरनम जोन में हैं। ये सारी टीम में हमारे अलग अलग मेंबर हैं। इसमें सभी एक दूसरे से पार्टिसिपेट करते हैं टाइम टू टाइम। अभी हमने लीड रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई थी। उसमें सभी, क्योंकि कोविड के चक्कर में सारे लोग नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि सारे लोगों को बोल सकें, इसलिए लीड रिसोर्स पर्सन को लिया। इसमें से एक एक टीम में
लोग आए, उन्होंने जानकारी ली कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी जानकारी ली है। ऑर्गेनिक, हम कहते हैं कि हमने कोई ऑर्गेनिक सामान बेचा, लेकिन उसका प्रूफ क्या है, इसके लिए सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का पहला चरण होता है हमारा किसान का चयन करना, उसके बाद में उसके सारा डेटा कलेक्ट करना, उसका फिर ऑनलाइन फीडिंग करना। ऑनलाइन फीडिंग करने से पहले हमारे पास में वेरिफिकेशन का काम जरूरी होता है। आरसी वेरिफिकेशन करता है कि ये फार्मर्स है कि नहीं है, फील्ड यहाँ पर इसने जो चयन किया है या हमारे एम्प्लॉय ने ली है या फार्मर्स ने ली है, वो फील्ड है कि नहीं है, उसके थ्रू आरसी वेरिफिकेशन होता है। हम उसको जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं टाइम टू टाइम उसको देखते हैं हम। अभी अगर कोई फार्मर के साथ में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, उसको चेंज क्या करना है, उसका प्रोसेस क्या है, सारा कुछ वहाँ पे चेंजिंग करते हैं टाइम टू टाइम। फील्ड में क्या लगाया उसने, क्या नहीं लगाया, उसके पास में फील्ड में कितने फार्मर्स के पास में कौन से जानवर है जो हमें उपयोगी होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जैसे गाय हो गई, बैल हो गए, भैंस हो गई, उनसे हम कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कंपोस्ट वगैरह फ्यूचर में तैयार करेंगे, ये सारी चीज़ें हम एक जानकारी लेते हैं उससे। धीरे धीरे ये प्रोसेस आती है, आगे जाके जब वेरिफिकेशन हो जाता है, इसी तरह हम रेसिड्यू एनालिसिस लेते हैं। एक साल का जब हम किसान जो भी प्रोडक्शन करता है उसको आगे देखते हैं हम कि कितना उसमें केमिकल, ऐसा तो नहीं कि केमिकल आया हो। फर्स्ट ईयर में तो हम सॉइल सैम्पलिंग लेते हैं, सॉइल सैम्पलिंग से हमको मालूम चलता है कि केमिकल कितना है उसकी। ऐसा तो नहीं पुराना कोई हिस्ट्री में उसने केमिकल यूज़ करा हो तो सॉइल सैम्पलिंग होती है। सॉइल सैम्पलिंग के लिए एक प्रोसेस होती है, सभी किसान को मालूम है। पैडी की, अगर पैडी की बात करते हैं तो पैडी में आपका अगर खेत है एक स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर में जब सॉइल सैंपलिंग लेते हैं तो पहले एक कोने से 4 कदम 5 कदम आगे चल के, दूसरे कोने से 4 कदम 5 कदम आगे चल के, और एक बीच में से लेते हैं। और एक वी नोच में, ऐसे वी नोच में एक मिट्टी को, ऊपर की सरफेस की मिट्टी हटा के उससे करीबन हाफ हाफ फीट का एक गड्ढा बना के उससे हम लोग मिट्टी लेते हैं। उससे सारे, अगर हमारे 5 मान लीजिए यहाँ पे हमने गड्ढा बनाया, यहाँ से लिया मिट्टी, यहाँ से लिया मिट्टी और बीच में से लिया, ये सारी मिट्टी को कलेक्ट करके और इसको मिला लेते हैं आपस में। मिलाने के बाद में उसको, उसमें से देख लेते हैं कोई कंकड़ पत्थर या ऐसा कुछ ना हो, कांच वाँच का टुकड़ा ऐसा ना हो, उसको हटा के एक सरफेस में मिला देते हैं और उसको कूट लेते हैं अच्छे से। जब मिट्टी कुटाई हो जाती है उसको छानते हैं और उसमें से 4 भागों में से उसको हाथ से लाइन खींच देते हैं, उसमें से 2 भाग की मिट्टी अलग करके 2 भाग की मिट्टी लेते हैं और तब तक मिलाते रहते हैं उसको, और ऐसी प्रक्रिया करते रहते हैं जब तक कि उसमें हाफ केजी के बराबर मिट्टी ना रह जाए। उस हाफ केजी की मिट्टी को एक थैले में भर के अपना किसान अपना सर्वे नंबर, अपना मोबाइल नंबर, उसमें आधार कार्ड नंबर आजकल मैंडेटरी हो गया है तो आधार कार्ड नंबर जरूरी देना है। ये सारा देके अपना डिटेल देके आप अपने जोन में अपने टेस्टिंग लैब में दे सकते हैं, जिससे आपको मालूम चल जाता है कि आपकी केमिकल कितना है। हाँ, कुछ फार्मर्स होते हैं जैसे मालूम चलता है कि किसी को एक अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ खेती में नया उगाना है, उसको वो भी पूछते हैं। कई बार हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो वो पूछते हैं हमसे कि हम क्या लगाएं सर, हमारे लिए क्या यहाँ पे उपयोगी है, हमारी मिट्टी के लिए क्या उपयोगी है। उसके लिए सबसे बेस्ट है लैब से जब आपको मिट्टी का सैंपल मिल जाएगा, आपको एक रिकॉर्ड मिल जाएगा, आपको मालूम चलता है कि आपकी मिट्टी में क्या क्या कमियां हैं, उस कमी को दूर करके आप अपने मन चाहा जो भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं नया, वो भी लगा सकते हैं आप। तो ये एक बहुत अच्छी बेनिफिशियरी भी है आपके लिए कि सॉइल सैंपलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोशिश ये करिएगा ऐसी जगह की मिट्टी मत लीजिएगा जहाँ पे नमी ऑलमोस्ट बनी रहती है, वहाँ की मिट्टी बिल्कुल नहीं लेना है। वहाँ की मिट्टी नहीं लीजिएगा जहाँ पे ज़्यादातर छाया रहती है। कुछ ऐसी मिट्टी लीजिए जहाँ पे आपको जो सरफेस की मिट्टी सारे पूरे फील्ड में एक समान हो। इसीलिए हमने कहा चारों जगह से अलग अलग मिट्टी लेके फिर मिट्टी की सैंपलिंग होती है। तो ये कोशिश करिएगा। अब मिट्टी की सैंपलिंग इसलिए ली हमने क्योंकि पहले साल की हमको हिस्ट्री की मालूम चलता है कितने हमारे पास में केमिकल था। सेकेंड प्रोसेस में आता है कि हमने जो भी लगाया है उसमें प्रोडक्ट जब आ जाता है, आपका ऑनलाइन ऑनलाइन आप फीडिंग हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑनलाइन में, सारे लोग अपना अपना देख सकते हैं। पीजीएस वेबसाइट है, पीजीएस वेबसाइट है, पीजीएस पोर्टल के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं कि कौन कौन अपने ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद हमारा जब प्रोडक्ट आ जाता है, लॉन्च हमारा प्रोडक्ट रबी या खरीफ में आ जाता है या हमारा समर में आ जाता है, हमने प्रोडक्ट को ले लिया है। अब उसमें हमें रेसिड्यू एनालिसिस होती है। रेसिड्यू एनालिसिस में हमको ये लैब में जाती है, रेसिड्यू के लिए थोड़ा थोड़ा सैंपल जाता है, चाहे वो एरेकानेट हो, चाहे कैज़ू हो, चाहे आपका पैडी हो, इसका सैंपल जाता है लैब में। उसमें 126 सैंपलिंग की जांच होती है, उसमें देखते हैं केमिकल कितना क्या है। वो सैंपलिंग होने के बाद में
आपको एक मिलता है ऑनलाइन। हम जिस चीज़ का भी ऑनलाइन सारा कुछ आप देख सकते हैं प्रोसेस की, हमने ट्रेनिंग कब दी है, हमने एक्सपोजर विजिट कब करी है, हमने कोई सैम्पलिंग करी है तो उसका किसने करी है, किसके थ्रू गया है, वो सारा चीज़ें उसमें फीड होता है। अब आगे जाके ये प्रोसेस होता है कि हम उसको फर्स्ट स्कोप सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट स्कोप सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद में हमको ये मालूम चलता है कि हमने एक साल में कितना गेन किया हुआ है। वो फर्स्ट स्कोप सर्टिफिकेट के बाद में प्रोडक्ट को सारा कलेक्ट करते हैं और उस फर्स्ट ईयर में भी हम अपना एक फेयर लगाते हैं, एक मार्केटिंग से आपको लेकर आते हैं, मार्केट से लिंकअप कराने के बाद में आपको बाहर के बायर भी आते हैं और आपको पूछते हैं कि भाई आपने क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया। ये ऑनलाइन सारा कुछ फिटेड होता है, आपकी जानकारी सारी मिलती है उसको ऑनलाइन पे। एक पीजस में जैविक खेती नाम से पोर्टल भी है, उसमें हर एक एलआरपी का नंबर, एलआरपी जैसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो एलआरपी क्या होता है, एक ग्रुप का एक मेंबर होता है जिसको हम लीडर कहते हैं, ग्रुप लीडर होता है। कहीं कहीं पे एलआरपी को ऐसे कर दिया गया जो नियर अबाउट 5-5 क्लस्टर होते हैं, 20-20 हेक्टेयर, मतलब कि 100 हेक्टेयर का एक क्लस्टर लेके, मतलब उसको 5 हेक्टेयर का 5 क्लस्टर का लेके एक एलआरपी बनाया जा सकता है। और एक इसमें ही एक हमको ग्रुप का एक मुखिया होता है, जिसमें एलआरपी के साथ में एक ग्रुप लीडर अलग होता है और एलआरपी को अलग अगर हम करते हैं दोनों को, तो 5 क्लस्टर में से एक एलआरपी को ले लेते हैं, एक ग्रुप लीडर को ले लेते हैं। उस ग्रुप लीडर को लेके हम वहाँ पे उससे टाइम टू टाइम एक जानकारी लेते हैं, वो ग्रुप लीडर आपकी सहायता देता है और ये सारा कुछ डेटा अपने पास रखता है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए फर्स्ट स्कोप सर्टिफिकेट जब जनरेट हो जाता है, हम ये सेम प्रक्रिया नेक्स्ट ईयर करते हैं। सेम प्रक्रिया में होता है कि हम सर्टिफिकेट में देखते हैं कि कितना क्या केमिकल कम हुआ है, फिर उस सर्टिफिकेट लॉन्च होता है, फिर सेकेंड ईयर का, इसी तरह थर्ड ईयर का। जब थर्ड ईयर का हो जाता है तो हमें पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिल जाता है उस टाइम पे, और हम अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, आपके पास प्रूफ होता है कि आप ऑर्गेनिक हो गए हो। थैंक यू। इसी आप ठीक है पूछ सकते कमल, कमल जी, तो आपने ये जो एक्सप्लेन किया हमें, ये तो प्रोसेस मेनली प्रोसेस था कि लैंड को पहले कैसे ऑर्गेनिक आप करते हैं, वो 3 साल का जो प्रोसेस है, और आप फार्मर्स को कैसे असिस्ट कर सकते हो। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि जो लैंड आप आइडेंटिफाई करते हो और जो फार्मर्स को एलोकेट करते हो, तो क्या वो फार्मर को आप उनके मतलब घर के पास या जहाँ पे वो रहते हैं और उन सबसे नजदीक क्लस्टर उनको वहाँ अटैच करते हो कि क्या सिस्टम है? हैं, करते हैं कि फार्मर उसी विलेज का हो। सपोज मान लीजिए आपकी एक विलेज है, वो आपका घर है खतरी में और आप रहते हैं प्रेरणा में या किसी और जगह पे रहते हैं, तो आपको वहाँ पे आपका घर होना ज़रूरी नहीं है, आपका फील्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि हमको एक बंच बनाना पड़ता है, हमको एक बफर जोन क्रिएट करना पड़ता है, ताकि हमको एक, हम ऑर्गेनिक अगर कर रहे हैं फील्ड में तो ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक वहाँ पे पूरा पूरा एक ग्रुप बन जाए, तो उस फील्ड को लेते हैं हम, तो फील्ड को ही हम ऑर्गेनिक करना है। ओके, ओके। तो ये फर्स्ट असिस्टेंट हुआ, फार्मर्स और ग्रुप ऑफ फार्मर्स को आप असिस्ट करते हैं उनके जो लैंड है उसको ऑर्गेनिक करने के लिए। उसमें आप कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करते हो या उनको असिस्टेंट देते हैं साइंस का, वो लैंड कैसा ऑर्गेनिक बनाना है, या उनके उसमें ऊपर जैसे है? अभी क्या है, मैंने एक वर्ड यूज करा सर अभी, बफर जोन। होता है जी, क्या कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ में केमिकल वाले भी अटैच होते हैं बगल में। मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनिक करना है, मालूम चला बगल का कोई फार्मर है जो इंटरेस्टेड नहीं है, स्कीम के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और वो केमिकल से करता है खेती, तो उसके लिए हम एक बफर जोन क्रिएट करते हैं। जैसे मेड़बंदी लोग कर देते हैं या कोई जी, झाड़ियाँ लगा देते हैं, या पानी का रुकाव करने के लिए कुछ अलग से एक रास्ता बना देते हैं ताकि उसका केमिकल हमारे पे ना आ पाए। जी। ऐसा कुछ करते हैं कि बफर जोन क्रिएट रहे और हमें हमें एक क्लस्टर मिले पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक का। ओके, तो ये दूसरा भाग, जो प्रश्न का दूसरा भाग है कि आप जैसा अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हो गोवा में, तो आपको किस टाइप के हर्डल्स या कठिनाइयाँ मिल रहे हैं? तो शुरुआत में क्या हुआ कि स्कीम के बारे में बहुत लोग अवेयर नहीं थे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने में या कुछ ऐसा, भाई हमको क्या मिलेगा। चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जब हम जाते हैं किसी के पास में
और वो अवेयर नहीं होता है। कोई भी स्कीम नई आती है तो उसको लाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत अंतर होता है। हमने भी ऐसी फेजिंग करी है बहुत सारी प्रॉब्लम्स की। बहुत सारे लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, कहते हैं कि हमारा पर्सनल डेटा है, रियल है, पर्सनल डेटा आदमी नहीं देता है। अभी किसी का आधार कार्ड नंबर लो या मोबाइल नंबर ही ले लो या अकाउंट नंबर ही ले लो, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि अकाउंट नंबर लेने के लिए ये होती है, कभी कोई सब्सिडी देना है, हमारे थ्रू हमने कोई डेटा लिया है, कोई सब्सिडी देना है गवर्नमेंट को, तो वो सब्सिडी किस में देगी? उसके लिए अकाउंट नंबर होना वहाँ पे मस्ट है। सही है, अगर हमने ठीक यहाँ पे सॉइल सैंपलिंग है। कराई या हमने किसी भी कोई को किसी को ऑनलाइन करा वहाँ पे फार्मर्स को, तो उसमें हमको ऑनलाइन के लिए हर एक, आपका मालूम चलिए डेरियल डिसूजा नाम है, सॉरी मेरा कमल सिंह नाम है, या कमल सिंह के नाम के 2 लोग आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? उसका आधार कार्ड ही लेंगे ना, या उसके पिताजी से मैच करेंगे। सही पहले है। तो ये होता था कि पिताजी से मैच जाता था, चलिए कभी-कभी हमने ऐसे चीज़ भी देखा है कि एक ही सेम नेम के उसके पिताजी भी हैंगे और फार्मर्स भी वही है। तो ऐसी कंडीशन में आधार कार्ड लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मैंडेटरी हो तो गया। हाँ, तो ये बात समझ में आया है कि कुछ लोग इंफॉर्मेशन देने पे मतलब देने के लिए रुकते हैं, और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम फेस करने के लिए ये रहा कि चीज़ें हैं हमको जल्दी से इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं हो पाई, जैसे कि हमारे पास में डेटा नहीं हो पाया अभी, लेकिन हमारे पास में भरपूर डेटा है। हमने उसको फीड भी कर लिया है। हमारे पास में 4500 फार्मर्स इंक्लूडेड हैं और हमारे ओके, पास में 200 क्लस्टर हमने बनाए हैं यहाँ पे गोवा में, और उसमें अभी भी काम चल रहा है। फर्स्ट स्कूल सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है, इसमें हम अभी निरंतर लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है। हमारे हर एक जोन में स्टाफ है जो लोकल लैंग्वेज भी जानता है और सारा कुछ उससे इंटरेक्ट होता है टाइम टू टाइम। तो अभी तो, ठीक है। अब तो नहीं आई फेसिंग वाला प्रॉब्लम सर, अभी तो चला गया है कि हुँ, प्रॉब्लम फेसिंग वाला। अब तो अच्छा लग रहा है, काम पे भी मन लग रहा है। मैं भी यहाँ का नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है काम पे, और चीज़ें हैं ओके, हर जगह पे, हर तरह के लोग मिलते हैं। अ, चीज़ें धीरे-धीरे ही अपने आप बन जाती हैं, और अब तो इतना काम पे मज़ा आने लगा ओके, है कि लगता है कि हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपने यहाँ गोवा के फार्मर्स काफ़ी अवेयर हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा गोवा ओके, ऑर्गेनिक बन पाए। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कुछ फार्मर्स से सुना था, एक जो मेरा फार्मर फ्रेंड है, वो कुछ रिसर्च या डेटा लेने जा रहा था, तो उनको क्लियर नहीं था। कोई एक बोल रहा है कि मिनिमम क्लस्टर साइज़ जो है, वो 20,000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और कोई दूसरा बता रहा है कि नहीं, 1000 स्क्वायर मीटर में भी एक क्लस्टर बन सकता है। तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, हर फार्मर को मिनिमम मतलब क्या कोटा है? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि किसी-किसी हमने कहीं-कहीं कोई गाँव होता है जिसमें से छोटे-छोटे फार्मर्स होते हैं, जिनके पास छोटे-छोटे फार्मर्स का मतलब छोटे-छोटे लैंड होते हैं उनके पास में। ज़्यादा लैंड नहीं है, किसी के पास में मान लीजिए कि 20,000 स्क्वायर मीटर की लैंड है, तो मान लीजिए किसी के पास में 1000 स्क्वायर मीटर की लैंड है। तो हमको क्या करना है, हमको किसी, हम ऐसे तो बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं कि एक क्लस्टर में एक किसान से भी हम 20 हेक्टेयर की ज़मीन ले सकते हैं और हमारा एक क्लस्टर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको तो सभी का ध्यान देना है, इसलिए हमको 20 हेक्टेयर की ज़मीन लेके उसका एक बंच बनाना होता है, उसका एक पूरा क्लस्टर बनाना होता है। तो ये डाउट में न रहिए कि हमको कितना क्या लैंड लेनी है, हमको केवल 20 हेक्टेयर लैंड लेनी है एक क्लस्टर के लिए। कभी-कभी कुछ-कुछ ज़ोनों में हमारे साथ में ये हुआ कि एक-एक विलेज में हमने 5-5 क्लस्टर भी बनाए हैं, 6-6 क्लस्टर बनाए हैं। अभी जैसे पेड़ना में हमारे धारगले में 7 क्लस्टर हैं। तो वहाँ पे आपका मान लीजिए 1400 स्क्वायर मीटर का आपका 1400 स्क्वायर मीटर क्या 1400 हेक्टेयर का आपका हो गया लमसम। तो वो उस हिसाब से हमने वहाँ पे 7 क्लस्टर बना लिए धारगले में मान लीजिए। तो वो चीज़ें जहाँ पे आती हैं कि हमको जो हम स्कीम में जो बंधे हुए हैं, तो हमारे पास में ये तय बात होनी चाहिए कि आपके 20 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। अगर सीधा-सीधा मोटा-मोटा अगर एक हिसाब किताब में समझाना चाहूँ तो फार्मर्स को, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक गैस सिलेंडर का मैं एक उदाहरण देता हूँ, तो गैस सिलेंडर में गैस हमारी 14.2 केजी का होना चाहिए। लोहे की बॉडी कितनी भी हो वो चलता है। तो हमको इसी तरह हमारे पास में 20 हेक्टेयर का एक लैंड होता है जिसको हम एक क्लस्टर बनाते हैं, उसमें फार्मर्स घट-बढ़ सकते हैं। फार्मर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी-किसी क्लस्टर में हमारे 60-60 फार्मर हैं। और किसी-किसी में 20 हेक्टेयर 20 फार्मर ही 20 हेक्टेयर में एक-एक हेक्टेयर का आदमी फार्मर्स का लेके हमने 1 हेक्टेयर बना दिया। इस साइड में भी हुआ है। तो वहाँ पे लैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको मेन लेना है, मेन हमारा जो मोटो है 20 हेक्टेयर का 1 हेक्टेयर 1 क्लस्टर बनाना है। ओके,
Okay. तो मैं नेस्टर से पूछूंगा. Hello, Nestor. Yeah, hi. Yeah. So Mr. Sen has explained, what the scheme Yes. is and how they have put of 20 hectares they have made Yes. one cluster and try to club all the farmers, and in that the farmers may have a bigger or a smaller size. Yes. So what is your See, experience? actually, I'll tell you what. Like, can I speak from the viewpoint of a farmer, because I'm a farmer. Yes. Okay, and this scheme has been implemented through the Mr. Kamal's company as well as the government of Goa. So what happened was, when I came to know of the scheme, I went to the agriculture. I've got about 40 acres odd in Valpoi, where I grow a lot of stuff, and I even I got a dairy, and I'm actually doing organic farming totally. Like, I don't even use organic material in my farm. My cows, my goats, they keep moving in my orchards, and that's the manure that goes to my plants. And plus, I use something called the Glircidia leaves, which help in this. Make my own vermicompost, make everything. So what happened was, when I came to know of this scheme, I was very interested in getting it implemented in my farm. So when I went to the agriculture office in Valpoi, like there was this like sort of a divide, means they were not very sure of the scheme. And I got the information that you have to go and contact the provider who's implementing the scheme. That is Mr. Kamal Sen's company. So I contacted one gentleman from Delhi, or from the north. I forgot his name now at the moment. In fact, we had lunch together one day also. And I told him, please come and give me, and try to implement it in this also, make my farm also a part of that scheme. But unfortunately, nobody came to contact me. And I grow a lot of organic stuff, and I would have liked to get my farm certified organic. But unfortunately, nobody came to my farm, and it's not only happened to me, it's happened to a lot of people. And like, the problem in implementation is, there's been no proper communication between the agriculture department and this provider who's doing the providing. I mean, maybe now things are cleared up, but initially there was a bit of a problem between that. That's what I felt from the way I was interacting with the department. So unfortunately, anyway, I'm not part of that scheme now anymore. And I would also like to know, like, how do I went to the agriculture department today, and what I was told is, now once those farmers who have already been made part of the scheme, they have already been notified, it has been put up on their website, and no, even if those farmers are not interested, basically from what I came to know is, they had a target of making certain amount of clusters, and they got any Tom, Dick and Harry farmer involved in that, just to make up the numbers. It is more or less like, the answers have to be coming either from the state government or from Mr. Kamal's company. Miguel, have you understood the scheme? Yes. And what do you think have been the hurdles for Goan farmers to implement this scheme, to be part of it? I think we have recently had now of connecting into Zoom and the networks, and that is a similar kind of issue that is facing organic farming clusters in Goa. Kamal Sen may know his subject very well, but he's communicating in Hindi, and so are the people who are in his network, all are Hindi speaking. And the people in Goa talk in Konkani. They may follow a little bit of Hindi, but there's a lot of fall off in between. So what is being explained as ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो चंद्र शेट्टी बोल रहे हैं, वो उनको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो किसको पता है? आप तो हिंदी में बोलते हैं, वो लोग कोंकणी या अंग्रेजी में बोलते हैं, नहीं तो मराठी में बोलते हैं, तो किसको क्या समझता है इसमें? ये अंदाज लगाना, ट्राई करूंगा, नहीं आ जाए मुझे, जी मैं कोशिश करूंगा सर, क्योंकि यही विषय है कि किसानों को गोवा में क्या समझ रहा है और क्या समझ के वो क्लस्टर बनाने में अपना नाम दाखिल करने को दिया है, अभी क्या कर रहे हैं, एक साल के बाद वो क्या कर रहे हैं, ये हमको सोचना है. Because we need to know that the farmers clusters are formed, then do they first know what is organic farming, and second, whether they are willing to work together in that cluster of 10 hectares, 20 hectares, whatever has been made.
10 farmers and more. That's a scheme. Paramparagat Krishi Vikas Yojana is a very good thing. The document is available in English online. I have read it. It's something that I was interested in because I have worked also for 15 years with the Directorate of Agriculture in Goa. In fact, the current director is my junior earlier. So we know what agriculture in Goa is. I have worked in the field for 15 years. I still continue to work in the field, but not as an agriculture officer. I'm connected with the college. We have said that the college will give all the training in organic. Okay. So there are 40-45 people who know organic farming available in Goa who are not working for government, not teaching somewhere, but they are not the ones being used here. We are having a whole lot of people who are being used to form these clusters who are not familiar with the local language. And that is where I see the major problem. Okay. Having names of 100 people, 1,000 people, I don't know. Because the scheme earlier was supposed to be for 50 clusters. I am aware that the then Minister for Agriculture, Mr. Vijay Sardesai, who's also an agriculture graduate, wrote a demi-official letter to the Minister of Agriculture at the Union government, and one more zero was added, and now we have 500 clusters to be formed under Paramparagat Krishi Vikas Yojana in Goa. 500 clusters of minimum 10 hectares, so that is 5,000 hectares. You are talking about 1/3 of the Khazan area that we have. If you want to just estimate, and out of 45,000 hectares, which is cropped with rice, so 1/9 of it would be under organic farming. It's a very big target, and just getting numbers will not change anything in the field. What I would like to ask is, at the end of 1 year, what has been the production? Which farmers, I'm interested more in Bardes Taluka where I am located, which farmer clusters are there? And can we now at the end of this crop season, go and visit those farmers and talk with them and see what they know about organic farming and what they're doing about organic farming. Having a cluster, paying to form them is not enough. We have to be able to see some results. Okay, So, thank you, Miguel, for that. Yes, thank you. And कमल सेन जी, मैं आपको थोड़ा ब्रीफली 2-3 पॉइंट मिगल जी का बताता हूँ कि जो फर्स्ट है वो जो बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन इंग्लिश में सब दिया हुआ है, तो हम जो पढ़े लिखे लोग हैं हम समझ पाते हैं, तो आप और आपके टीम जो है वो हिंदी में बात करते हैं, क्या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन बना है मराठी में या कोंकणी में जो आप लोकल फार्मर्स को देते हैं, जिनके थ्रू वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए सर मैं नहीं करता, मैं खाली एज अ पैनल मेंबर में रहता हूँ और मुझे सारा कुछ देखना पड़ता है। बाकी मेरी जो लोकल टीम है वो कोंकणी जानती है, वो गोवा के लोग हैं, और जो भी हमारे ट्रेनर्स आते हैं वो भी गोवा के ही लोग हैं। और आपके अभी श्रीरंग जामले जी हमारे पास में ट्रेनिंग से आए थे, जो एग्रीकल्चर प्रिंसिपल भी हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रिंसिपल भी हैं, वो आए हुए थे वहाँ पे। तो मैं ट्रेनिंग नहीं देता, मैं एज अ सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर यहाँ प्रोजेक्ट देख रहा हूँ सर, और जो भी ये डेटा लेता हूँ, क्योंकि पहले मैंने किया हुआ है PKY में, इसलिए मैंने इस स्कीम में आया हूँ। बाकी कुछ भी होता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो टोटल इंग्लिश में ही होता है हमारा, और इसलिए कम्युनिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। ओके, तो आप बता रहे हैं कि जो आप जिनसे आप बात करते हो, जिनको समझाते हो, जो टीम है, आप बोल रहे हैं कि उनको कोंकणी आता है और वो फार्मर्स को बताते हैं? जी ठीक है, लेकिन अब तक कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है जो फार्मर्स के हाथ में दे सकते हैं, जो घर पे ले सकते हैं, वो अब तक कुछ डॉक्यूमेंटेशन कोंकणी या मराठी में नहीं है, सही है? इंग्लिश में सर। हाँ, सिर्फ इंग्लिश में। ठीक है, तो वो एक हर्डल हो सकता है, सही है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ सर मराठी या कोंकणी में यहाँ पे आप आ जाए, मैं अपने ऑफिस में बात करने बात के लिए जी, कि कम्युनिकेट के लिए उनके लिए इजी हो जाएगा। मेगल जी सही बोल रहे हैं। Okay. Miguel, and the other point you were making, besides, so this language is the first barrier. So, हाँ, second point जो है, जो मिगेल जी पूछ रहे हैं कि जो एक साल बीत गया है अभी, तो
कुछ क्लस्टर्स में आपने ऑलरेडी काम किया है, तो वो कुछ ऐसा फर्स्ट ईयर के थ्रू कुछ आगे पहुंचा है, कोई मतलब प्रोड्यूस बन रहा है कि सिर्फ अभी लैंड पे काम चल रहा है? सर लैंड पे काम नहीं चल रहा अभी रबी और खरीफ का जो प्रोडक्शन आया हुआ है उसका पेयर अप्रेजल होगा, उसका डेटा लिया जा रहा है। अभी हमारी फील्ड लगी हुई है, उसमें जब डेटा आ जाएगा उसका, उसके थ्रू उनको सर्टिफिकेशन जनरेट हो जाएगा। वो सर्टिफिकेशन के लिए काम, जब सर्टिफिकेट आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं उसको, और अभी जैसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो एक फेयर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात चल रही है, और यहाँ तक भी बात चल रही है कि हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को हम ट्रेड फेयर लेके जाएंगे जो दिल्ली में लगता है, उसके लिए बात चल रही है। लेकिन इस साल कोविड के चक्कर में शायद वहाँ पर दिल्ली में ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ और भी स्कीम आती है, जैसे भी कोई फेयर वगैरह या कहीं पे कुछ बात मालूम चलेगी कि ऑर्गेनिक फेयर लगने हैं, तो अपना प्रोडक्ट गोवा का ले जाएंगे, विद सर्टिफिकेट ले जाएंगे। उससे सर्टिफिकेट में क्या होगा कि हम किसी को पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं कि ऑर्गेनिक हमारे पास में कितना प्रोडक्ट है गोवा में और कितने फार्मर्स हमारे ऑर्गेनिक हो चुके हैं, तो ये इजी गोइंग हो जाएगा। तो आपके पास अभी वो डेटा होगा कि अभी कितने फार्मर्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, जिन्होंने अभी आपने बताया कि 1-2 सीजन का प्रोडक्शन भी निकाला है उन्होंने? जी डेटा है सर उसका, वो ऑनलाइन पीरियड भी है, पीजीएस पोर्टल में देख भी सकते हैं सारा। ओके, तो आपके अंदाजन से कितने फार्मर्स अभी इन्वॉल्व है इसमें गोवा में? 4,500। तो 4,500 तो स्कीम के अंदर आ गए हैं और कुछ लैंड पे कुछ काम चल रहा है, लेकिन जो फसल है वो 4,500 फार्मर्स में से कितने फार्मर्स ने फसल निकाला है, कम से कम एक फसल निकाला है? फसल अलग अलग जोन में अलग अलग है आपका, जैसे अरेका नट भी है, कैजू है, और यहाँ पे पैडी भी बढ़िया है अपने यहाँ गोवा में। तो ये सारा फसल जो चुनिंदा फसल है और जो बढ़िया क्वालिटी के हैं, हम इसको फेयर में रखेंगे, विद सर्टिफिकेट रखेंगे। सारे फार्मर्स को 4,500 को ले जाना पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन जितना भी होगा उसका एक बेस लेके और सारा डिपार्टमेंट से बात करके, और जो बढ़िया फार्मर है, जो जागरूक फार्मर है, जो कुछ आगे अवेयर भी हो और बता भी सके, लोगों को भी जानकारी दे सके कि कैसे क्या उसने ऑर्गेनिक करा, ऐसे कुछ फार्मर्स चूज करना है हमें। ओके, तो 4,500 फार्मर्स में से सभी अभी फसल उन्होंने प्रोडक्शन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, सही है? प्रोडक्शन सबका हो गया, डेटा उनसे अभी लेना है। ओके, सबका प्रोडक्शन मतलब वो एक्टिव है, उनका वो जमीन था, अभी वो आप उसका टेस्टिंग करोगे, उसका सर्टिफिकेशन दोगे, वो आप काम अभी कर रहे हो जी। So Miguel, does that answer your question? He says there are 4,500 farmers, and the production is coming out, and of course it takes time to 1-2 years for it to become fully organic. So they are taking the testing of that and seeing whose produce can be given certification right now, who have to wait for another 1 year or something like that. No, they cannot certify anybody now, because organic certification can come only after 36 months have passed. So 6 months is 3 years. 3 years. They Okay. Yeah. So till they finish 3 years, they cannot give an organic certificate. They can at the best give a certificate in conversion. In conversion, yes. I've worked with the Organic Farming Association of India for 4 years, Right. from 2008 to 2012. Yes. And I know what organic farming is. I've worked across Yes. also, not just Goa. And I also know what are the difficulties in Goa. He has mentioned the name of Mr. Srirang Zamble, who is the principal of RCPR School of Agriculture and the Diploma Institute that they have at Savivare in Ponda. Yes. He is a BSc Agriculture and a nephew of a former Deputy Director of Agriculture also, Prakash Zamble. But the institute has been talking about training 500 farmers approximately in one-day training courses. Now, farmers are not people who learn online, and in one day, what they will learn, if that is the kind of training that we are talking about, then it is nominally a training. It's like applying holy water and saying that fellow is converted. It doesn't work. So who is doing the hand-holding in these clusters, whether there are leaders? And we will know on the 19th of December, Father Inas Almeida
award will be given to the best organic farmer, 50,000 rupees cash by the state government. From this 4,500 farmers, will there be nominees for the best organic farmer of the year? Will there be nominees from there? That this man is organic or he's in conversion and he's the best possible practice that is there. Second thing is, how much rice will be available if tomorrow Nestor wants to buy rice to market, to process and market as organic? Farmers are in conversion. Can Nestor, from these 4,500 farmers, pick out at least 4,500 kilos of rice that he could call as in conversion, organically grown, though not organic certified? Is there some data of that? Are they growing vegetables? Do the zonal agriculture officers of each taluka know who are the farmers who are supposed to be in the organic clusters? Can we access this information? And what is the website, or where is this information available from Kamal Singh? So Miguel, we'll pause there because you have put 3-4 questions. And so as Mr. Kamal Singh has already agreed earlier, because he nodded and said, about this in process, that is in conversion, that is the system also they follow, which is very correct what you have pointed out. Maybe it was just my comment that gave a wrong impression of, a certification in 1 year, but he also agrees to that same process, that it takes minimum 3 years. And in between what they're testing, the only certificate or status they will give is in conversion. So that is understood. So the second part is, कमल सिंह जी, आप अगर ये इस पे कमेंट करेंगे जो मिगेल सर ने बताया है कि वो जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उसमें उन्होंने सुना था कि वो 500 फार्मर को एक दिन का ट्रेनिंग देने वाले थे ऑर्गेनिक समझाने के लिए। तो क्या ये भी काम आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में देखते हैं या वो कोई और देखता है? ये जो ट्रेनिंग है ऑर्गेनिक का, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? एक पार्ट होता है हमारा एलआरपी ट्रेनिंग का सर, और एक पार्ट होता है हमारा फार्मर्स को ट्रेनिंग करने के लिए। अभी हमारा एलआरपी ट्रेनिंग वाला पार्ट हुआ था जिसमें लीड रिसोर्स पर्सन और ग्रुप के मेंबर आए थे जो कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देनी थी, उनको बताना था कि उनको समझ में आना चाहिए कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में करना क्या है, प्रोसेस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन का। उनको ट्रेनिंग दे दी गई है। अभी हमें फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए एक बनाना है, उसका सारा कुछ ड्यूरेशन और टाइमिंग। तो मैं एक मिनट सर, मैं तो उस पर मैं पूछूंगा, जो पहले आपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया है, तो वो कितने दिन या घंटे का ट्रेनिंग था? वो एक सेशन था या 2-3 मीटिंग, कैसे आपने किया था? सर वो एक सेशन ही था और उसमें 15 मेंबर थे एलआरपी लीड रिसोर्स पर्सन, 15 मेंबर। सुबह की मीटिंग थी 10 to 2 o'clock और सेकंड मीटिंग थी 2:30 to 5 PM। ओके, उसमें तो 15 मेंबर्स। वो 2 अलग बैच थे कि फार्मर दो अलग बैच? वो अलग बैच थे, ठीक है। और उसमें कोई प्रिंट आउट्स या कुछ मटेरियल दिया गया था फार्मर्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स या डिटेल? कुछ पैम्पलेट्स वगैरह सब दिए थे उनको इन्फॉर्मेशन के लिए और जानकारी के लिए। उनको एक नोट पैड और सारा कुछ इंक्लूड उनको लिखने के लिए, राइट करने के लिए दिए गए थे। ओके ओके, तो वो पहला जो आपका एजुकेशन था ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए। अभी ये जो दूसरा प्रोसेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाने के लिए, मतलब ऑर्गेनिक क्या होता है, कैसा करना पड़ता है, ठीक है, उसका आपको अभी भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, आपने कुछ बनाया नहीं अब तक, सही है? अभी सर टाइम और वो सारा कुछ डिसाइड नहीं हुआ। उसमें स्कीम में हैगा हमारे, उसमें प्रोसेस है जो फार्मर को ट्रेनिंग देना है, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना क्या है, उसमें पेस्टिसाइड वगैरह बनाना है या कंपोस्ट वगैरह बनाना, सारा डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे दिखाया जाएगा। हाँ, तो आपने अभी तक वो ट्रेनिंग आपने स्टार्ट तो नहीं किया है, सही है? नहीं सर, अभी नहीं। हाँ, तो वो जो ये जो कॉलेज का प्रोग्राम है, तो ये जो कॉलेज का एक दिन का प्रोग्राम है जो 500 फार्मर्स को सिखाने वाला था, वो आपका प्रोग्राम नहीं है? नहीं, वो मेरा नहीं था। Okay. So Miguel, did you get that? So that 1-day training course of 500 farmers, it was not their program. Maybe it was some effort done by the college. No, but he mentioned the name of Mr. Sriram Zamle, Okay. who is the principal of that college. Okay. Okay.
So if he's associated with them, then what kind of training he is associated with? Because that's a institute that it's not a college, but does not give any degrees, though sometimes it is being called as a diploma college or a vocational college. Not a college, it doesn't give any degree. It only has certificate and diploma courses. There is only one college in Goa, and that is the Don Bosco College of Agriculture in Sulkarna. So this is a institute, and it is a higher secondary. Higher secondary is there, and the number of students that they have also is something that you look at 10 and 12. You don't look at large numbers that you think a college would have. So, right. So in this institute, what kind of training is being given to 500 people, whether this is associated with Paramparagat Krishi Yojana or it is being done independently by them to make people aware of organic farming, and what exactly is the information that's available today. That is what we need. Yeah, so what Mr. Kamal Singh has already clarified with me here, that this training that is given at the college is not done by them. Okay, so I will put the question again to them. In fact, he's saying their training program for the farmers that has to go out has not yet started. So there is no question, I think there's no link between this college doing it. So I'll just ask him again. सेन सर, आप ये जो वो कॉलेज में जिसने आपने रेफरेंस किया था, वो कॉलेज में जो वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कौन सा ट्रेनिंग है? वो कहाँ से वो लोग ये 500 फार्मर्स का ट्रेनिंग कर रहे हैं? आपको कुछ पता है उस कॉलेज में? आइडिया नहीं है एक्चुअली। नहीं सर, मुझे उसका आइडिया नहीं है। सीरंग जामले जी को ट्रेनर के रूप में मैंने बुलाया था अपनी ट्रेनिंग के लिए। उसमें हमारे पे इतना मेंबर ही नहीं है, क्योंकि एक क्लस्टर में 20 फार्मर्स हैं, तो इतना तो 20 फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग देना मेरे ख्याल से तो ठीक रहेगा। तो वो 500 फार्मर्स को ट्रेनिंग देना वो एक ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। ह्यूज अमाउंट, ठीक है, ओके। So Miguel is clarified that no, he is not aware of what was going on in that college regarding this training. So maybe we have to get in touch with the college to figure out, you know, whose initiative it was. So now I'll come to Nestor. Nestor, could you please share with us once again, you know, whatever you would like to share about your problems you faced. Your mic is on, is blocked. Mic, can you hear me? Yes, can hear you. Yes. Okay, Nestor. Fine. I'd like to question Mr. Kamal Singh. Yes. Mr. Kamal Sen. Actually, what happened was when the scheme was announced, I met one Mr. If I'm not mistaken, Mr. Rajesh Kumar. Mr. Kamal, there's a Mr. Rajesh Kumar who was. Yes, sir. Okay, I met with Mr. Rajesh Kumar. In fact, I had lunch with him one day, and I told him and I think Mr. Rajesh Kumar was involved with Tiswadi as well as the Satari talukas. They were given charge of those 2 talukas. And I told him very clearly, please come and meet me. I want to be part of the scheme. So I don't know what happened is, and suddenly I came to know that they were basically just looking out for numbers, not seeing whether who's actually deserving of the scheme and who wants to this. They were just wanting to fill up the numbers. And it so happened that I was bypassed, or intentionally or unintentionally, I don't know. So when I went to the agriculture department in Valpoi, the zonal agriculture officer, Mr. Raut, what he told me was that the scheme is being handled by is it AFC, right? The scheme is being handled by AFC, and we have just given the names of all the farmers to them, and it is up to them to choose whom they want to this. So nobody spoke to me, nobody did anything to me, and I know at least 15 more people who were interested in joining the scheme, but they were bypassed. Like my farm is just close to a village in Dongurli, where I think there is a cluster made in a village called Golauli. My farm is in Dongurli village. Golauli is about 500 meters away. So there's a cluster made over there. And I know that this year some of them have grown rice, but they have used their normal way of doing with full chemicals. Whereas I do not use chemicals in my farm, but unfortunately nobody came to me and I'm not part of the scheme. So today I had gone to the agriculture department to ask, can I be added to the scheme? But they said it's already been locked. So there's no chance that you can be added to the scheme. So unfortunately, I've lost out on getting my products certified because I do a lot of sales of rice. In fact, I purchase about 150,000 to 2 lakh kgs of paddy every season from the farmers, paying 5 rupees above the government support price of 20 rupees. I pay 25 rupees to a farmer and I buy that from farmers and I process the rice. And
Like, as you know, in my village in Sandestev, even there, nobody came actually to us. We have done 10 lakh square meters of paddy without using even organic inputs. We've just done it naturally. But unfortunately, I don't know on what basis they have selected farmers. And as far as I know, there is a big disconnect between the agriculture department and AFC. So Mr. Kamal Singh will like to, and if I want to be part of the scheme, is it possible for me to join the scheme now? मैंने ज्वाइन किया सर, तो एक हमारे पास में लिस्ट सारी बन चुकी थी, और इसको ऑनलाइन फीडिंग करने के लिए अगर आपकी मेरी मुलाकात पहले हो जाती, ऐसे आप बहुत सारे फार्मर, मैं आपके अकेले बात नहीं करता हूँ, मैं सारे फार्मर्स की बात करता हूँ, बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो जागरूक हैं और जुड़ना चाहते हैं स्कीम में। उसमें हमारे पास में डेटा हमारे पहले आ गया था, और किसी ने भी मुझे अवेयर नहीं किया उस टाइम पे कि भाई आप आए हो या आपको जोड़ना है। अगर मुझे हल्का सा भी एक अवेयरनेस हो जाती वहाँ पे, तो मैं पूरी कोशिश करता कि आपको ऑनलाइन फीड करवा दिया जाए, वहाँ पे आपका डेटा फीड करवा दिया जाए। अभी हमारे पास में डेटा जितना हमें क्लस्टर अपॉइंटेड है 200, तो हमारे पास में डेटा आ चुका है सर, और उसको वो फीडेड हो चुका है ऑनलाइन में। अगर कुछ भी ऐसा कोई कैजुअलिटी बनती, कोई फार्मर नहीं है या कुछ भी, तो वहाँ पे हम हो सकता है कुछ ऐड कर, क्योंकि जेडो सर ने भी मुझसे बोला कि कुछ उनके पर्सनल लोग भी थे कि जिनको जोड़ना था और वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। हो सकता है कि किसी ना किसी का नाम और भी आया हो, आपका भी नाम आया हो, तो उस टाइम पे मेरे पास में लिस्ट आ चुकी थी। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ हो सके, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपसे भी मैं कांटेक्ट ले लूंगा आपका भी, और मेरा भी कांटेक्ट ले सकते हैं, और पर्सनली मैं मीट भी करूंगा आपसे पक्का। ओके, शुक्रिया कमल जी कि ये जो 4500 फार्मर्स है, इसका जो इंफॉर्मेशन है, ये कहीं पे पब्लिक को मतलब ऑनलाइन कोई वेबसाइट पे है या आपके वेबसाइट पे है, ताकि लोग समझ सके कि कौन कौन से फार्मर्स कौन से एरिया में इस स्कीम में जुड़े हुए हैं, और लोग जान भी सकते हैं अच्छा कि मेरा नाम नहीं है तो मुझे उसमें ज्वाइन करना है। अभी ये जो 200 क्लस्टर है, जो मैं समझा अब तक के, ये जो 200 क्लस्टर सिर्फ नॉर्थ गोवा के लिए है कि पूरा गोवा के लिए है? ये जो सर 4500 फार्मर्स, AFC टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स, टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर सॉरी, वो 500 है, जिसमें से AFC इंडिया लिमिटेड को 200 फार्मर्स 200 क्लस्टर का एक टारगेट है। ठीक है, तो आपको आइडिया है और कुछ एक या दो और भी कंपनी है जिनको 100 या 200 दिया गया है? यस सर, श्री राम सॉल्वेंट है, ये साउथ में देख रहे हैं, और अभी और 2-3 प्लेयर और भी हैं हमारे इधर गोवा में जो और भी क्लस्टर देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर 500 है। ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो 3-4 कंपनियों का नाम है, ये कहीं ऑनलाइन मिलेगा गोवा के वेबसाइट पे या कोई वेबसाइट पे, ताकि हम लोग जान सके कौन एजेंसीज है किस एरिया के लिए? सर मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन तो नहीं, मैं आपको दे दूंगा, और मेरे पास रखे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, मैं आपको दे दूंगा, आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, ठीक। अगर कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई वेबसाइट या कोई कॉन्टैक्ट नंबर, आप अगर चैट विंडो में डाल सकते हो तो पूरा ऑडियंस को मिलेगा, हमारे पैनलिस्ट को भी मिलेगा। अभी पीजीएस इंडिया पोर्टल है, पीजीएस पोर्टल इंडिया है, उसके थ्रू सारा कुछ ऑनलाइन ही सारे देख सकते हैं उसमें, चाहे वो फार्मर्स हो चाहे कोई भी जान सकते हो उसमें। आप जो वेबसाइट का एड्रेस, जी सर, आप वेबसाइट एड्रेस बताएंगे तो मैं चैट में टाइप कर दूंगा। मैं एक अपने चैट में कर दूं, आ जाएगा वो? हाँ, जो चैट विंडो है, Q&A में जो चैट विंडो है, आप सिलेक्ट कीजिए टू पैनलिस्ट एंड अटेंडीज, तो मतलब सबको जाएगा, और जो भी वेबसाइट का एड्रेस है आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जी, I think this should be uploaded on the Krishi Parampragat scheme, actually the website of Krishi Parampragat Vigyan, this scheme, it should be there on the website, all the panelists that are involved. It's a central government scheme. I think it's a pan India scheme. So I think, if I'm not mistaken, it should be there on the website. Okay, do you have the website link? The website no, I don't have the website link. Actually, I had gone today over there. It's Parampragat Krishi. This, you can just type Parampragat Krishi Vigyan, this scheme and all, and it will come on that. Okay. I don't know if they have updated, because somehow I found the implementation of this a very haphazard way it was done. ओके, तो कमल सिंह जी, ये जो 200 क्लस्टर है आपके अंडर, आपके कंपनी के अंडर, ये
कोई ज्योग्राफिक रीजन के लिए है, नॉर्थ गोवा के लिए है? ये सर नॉर्थ गोवा के लिए केवल पोंडा एक जोन हमारा ऐसा आता है जिसमें 60 हाँ, क्लस्टर्स उसमें हैं, वो साउथ हाँ, में आते हैं। उसमें कौन से तालुका है? तो पोंडा आपने बताया एक है, और जी, पोंडा है, तिसवाड़ी है, सत्तरी तिसवाड़ी और है। पेरनम से 4 तालुका है। पोंडा, तिसवाड़ी, पेरनेम और सत्तरी। सत्तरी। ओके। तो इसके अंडर जो भी लोग हैं, फार्मर्स है, वो आपके वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सही है? जी सर, पीजीएस पोर्टल का मैंने अभी लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं वहां से भी। लेकिन हाँ, आपने जो लिंक दिया है वो तो एनसीओएफ का है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद। जी जी बिल्कुल सर, लेकिन एक आईडी पासवर्ड लगता है, आईडी पासवर्ड लगता है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। आईडी पासवर्ड के लिए ये लिस्टेड। संस्था का वेबसाइट नहीं है, एएफसी का? जी मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। ओके, जी मैं अभी आपको ओके, हाँ, प्लीज टाइप कीजिए वो एएफसी का जो वेबसाइट है, ताकि ये 4 तालुका में जो लोग हैं वो आपके वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे स्टेटस देख सकते हैं। जी, और जो हमारे पैनलिस्ट अभी है, उनको तो क्या मैं उनको आपका नंबर दे सकता हूं, तो कभी वो आपसे कांटेक्ट में रह सकते हैं और समझ सकते हैं, कमल जी? हाँ जी बिल्कुल, मैं अपना नंबर टाइप कर देता हूँ उसमें। जी, प्लीज टाइप कीजिए आपका नंबर। तो जो भी हमारे अटेंडीज अभी है, और अगर ये 4 तालुका में है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। हाँ, और ये प्लीज आपके कंपनी के थ्रू ये एक चैनल बना लीजिए कि जो फार्मर्स चाहते हैं अंदर आने के लिए, उनको जरा चैनल बना दो, नेस्टर जी के जैसा, उनको जरा चैनल बना दो और वो स्कीम में आ सकते हैं। Actually, I've got a grouse. Why? Because see, in Sandestev we have done 10 lakh square meters of farming organic, whereas in this, but somehow I don't see the implementation. I don't know on what basis they have made groups like Tiswadi. I think they've got the smallest clusters are formed in Tiswadi. Nobody came to me in Tiswadi. Nobody came to me in Sattari. And in fact, I knew this person Rajesh Kumar personally. So unfortunately, I don't know what happened, but fine. What's happened has happened. Just give us 10-15 seconds now. Mr. Kamal, he was connecting through mobile Wi-Fi, okay, and his data got over. So now he's come back on the phone, and you'll be able to hear his voice, okay. So he will speak and he will be able to talk. So I'll just get, हाँ जी, तो हाँ, Mr. Kamal is here with us, okay. हेलो कमल जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? सही है? जी जी बिल्कुल साफ आ रही है सर। Okay, so Mr. Kamal is with us, and yeah, we can interact with him. So yes, Nestor, please continue. Mr. Kamal, question आपके लिए है। सुनाई दे रहा है सर आपको? हेलो मिस्टर कमल, आपको सुनाई दे रहा है? ओके, कैन आई कंटिन्यू विद माय क्वेश्चन? हाँ सर, अगर मेरे पास अभी फिलहाल 10 या 15 लोग जो है फार्मर्स जिसको स्कीम ज्वाइन करना है, तो स्कीम में एडिशन करना कोई चांसेस है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो अभी कितना टाइम तक रुकना पड़ेगा हम लोग को स्कीम के लिए, अगला स्कीम के लिए? अभी पॉसिबल मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अभी सारा कुछ उसमें फीडेड हो चुका है और 200 क्लस्टर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 200 क्लस्टर में हर एक क्लस्टर को आपको पता है कि 20 हेक्टेयर लैंड होना चाहिए। अब 20 हेक्टेयर से ज्यादा थोड़ी ना ले सकते हम, ये तो स्कीम में आएगा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। बाकी एक आपने अभी लिस्ट की बात करी कि लिस्ट मुझे कहाँ से मिल जाएगी। ऑनलाइन लिस्ट उसमें आपको पीजीएस पोर्टल जो है उसके थ्रू आपको मिल सकती है, अदरवाइज आप जोनल ऑफिस में जाके अपने ले सकते हैं वहां से। नहीं, मेरे पास तो लिस्ट है, सत्तरी का तो लिस्ट है किस किस के पास आया हुआ है स्कीम। अगर कोई जोन का, अगर जो कोई सेक्टर का पूरा 20 हेक्टर नहीं हुआ, तो उसमें ऐड कर सकते हैं आप नया आदमी को, नया फार्मर को। तो नए वाले के लिए अभी नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि अभी
ये स्कीम में फुल हो चुका है, जो एरिया है वो फुल हो चुका है सर। तो मीन्स अपना क्या अभी रिक्वेस्ट क्या है, मतलब हम लोग आगे क्या करें? अभी अगर कोई अभी क्योंकि अभी नए क्लस्टर और भी आने वाले हैं, अगर गोवा गवर्नमेंट में अभी तो उसमें देख सकते हैं कि अगर नई स्कीम में कुछ ऐड हो सकता है तो सर मैं एक बात पूछूंगा, तो आपके अंडर ये जो 4 तालुका है, तो आप बता रहे हो कि ये 4 तालुका में कोटा फुल हो गया है और एक फार्मर आप उसमें नहीं ला सकते हो। एक्चुअली अगर ऑनलाइन नहीं होता उसमें हम कुछ चेंजिंग कर सकते थे। अभी ऑनलाइन के लिए हमारे अलावा भी आरसी वेरिफिकेशन होता है, आरसी वेरिफिकेशन के बाद वो फीडेड होता है। हम फीड करते हैं नॉर्मली, फिर आरसी वेरिफिकेशन के थ्रू आरसी वाले भी फीड करते हैं। तो अब ये दो प्रोसेस हो गई हैं, खाली हमारे अंडर में नहीं रहता क्योंकि आरसी के वहाँ से परमिशन भी लेना पड़ता है, सारा कुछ है। ओके। और क्योंकि लैंड हमारे पास में जितनी चाहिए थी 200 हेक्टेयर के लिए वो पूरी हो चुकी सर, तो नया फार्मा ऐड करना थोड़ा पॉसिबल वहाँ पे हो नहीं पाएगा। ओके, तो आपके कंपनी के थ्रू वो ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो दूसरा कंपनी है वो आपके तालुका में काम नहीं कर सकता है ना? नहीं, हमारी सबका अलग अलग जोन दे रखते हैं ना सर, उसमें सबका एक एरिया। जैसे पोंडा में हमारे पास में 60 क्लस्टर हैं, 60 से हम 61 नहीं कर सकते, वहाँ 62 नहीं कर सकते हैं, या किसी भी जोन में और एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हाँ वो हम समझ गए हैं, आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो क्लस्टर है पोंडा में वो दूसरा कंपनी को गवर्नमेंट दे सकता है ना, मतलब दूसरा कंपनी भी उनके पास में ऑलरेडी है ये सारा कुछ, जितना भी प्रोवाइड करना है सबके पास में अपने अपने क्लस्टर हैं, अपने अपने काम में, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वो भी कर रहे हैं काम। अच्छा, सबके पास में अपने अपने क्लस्टर हैं। हाँ, तो ये जो आपका 4 तालुका है जो आपकी कंपनी को दिया गया है, वो सेम तालुका में दूसरे कंपनी भी काम कर रहे हैं? सेम तालुका में नहीं कर रहे, वो दूसरे डिफरेंट तालुका में है। Okay, so Nestor, that your answer is here that these 4 talukas have been given to AFC and their quota is full. That they cannot take any more farmers in these 4 talukas. Now we have to see in the other talukas whether the quota of the No, it's not possible. Actually, I went to the department today. They told me it's not possible. I just wanted an answer from Mr. Kamal. Yeah, so he's also made the same thing clear, yes, that they cannot take any more farmers. Yeah, but it's a very sorry way that they have done this implementation of the scheme, you know, and it hurts actually when you see the implementation done this way. Like just 500 meters away from me, there are farmers who have got the scheme, and nobody came and visited me. In fact, I requested Mr. Rajesh Kumar to come and let me fill the forms up, but in spite of that, he was the guy who was implementing the scheme in Goa. They didn't do it. So anyway, now what's done is done. It can't be changed now. So fine, we might have to wait for another time. इसके ऊपर कमल सेन जी, लास्ट क्वेश्चन, ये जो 4,500 फार्मर्स है उसमें कुछ फार्मर्स शायद ऐसा भी बताएंगे 6 महीना या 1 साल के बाद कि नहीं, हमको ये नहीं कंटिन्यू करना है, हमको नहीं जम रहा है, तो उस केस में आप उसको रिप्लेस करोगे वेटिंग लिस्ट के साथ, जो वेटिंग लिस्ट में फार्मर्स है? सर ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर कोई फार्मर के आज कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके बिहाफ में अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, तो हाँ, हम आपसे यही चाहते हैं कि एएफसी के बिहाफ पे आप वो जरा डेटा रखिए, अगर कोई मतलब स्पॉट वेकेंट बनता है तो नेस्टर अंदर आ सकता है वो उसमें। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, ऐसा कोई अगर डेटा होगा अगर तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। Miguel, would you like to say anything further? Any questions? Yes, it's a very simple thing. The allocation for Goa was 50 clusters, that is 500 hectares. That with one DO letter, the minister was able to change to 500 clusters, and that is 5,000 hectares. If an addition of another 50 hectares is required, if not in this financial year, in next financial year, starting 1st of April, it should be possible to add. There was an annual allocation of these clusters, and all India level, there will be availability of more clusters because Goa is a very small state.
from 50 to 500 was done on just one letter. We can make a request for another 50 if the 500 are full. I have my doubt is 500 will be full and operational, but there will always be an issue for the agency to say it's not operational, because then it would show that they have not done their homework properly. So whether they're functioning or not functioning, they'll be shown as functioning. So this 500, I don't think Nestor will be able to get in. And Nestor is not a 1 and 2 hectare holding farmer. He's a big farmer. So he will have as much as maybe 25 farmers with him. And in Sarkosev, I got over 500 people who could join. Yeah, but if the target office was only 200 hectares, then you would have most likely picked up the small farmers. Right. Possibly some farmers have been selected. Not at all will be small farmers. You have one big farmer and then you take the remaining farmers with just 0.2 hectare, like half an acre land, then you can make a good cluster with one big farmer in it. So whatever it is, I think we have to look at the data which is there on the NCOF website, on the AFC website, and on the Agriculture Department website. We have to reconcile it and see where is the opportunity, and definitely 1st of April 2021, there should be an opportunity available, and we have to make sure that it happens. Also, the whole process needs to be assessed again. How it has happened, what has happened, and what were the criteria of selecting the farmer. There must be some system for doing this thing. Now, if the training is just happening now, then on what basis were the farmers selected and what were they doing the previous season? What is the in-conversion produce that is available now? So I think a lot of data has to be assessed, and then only we'll be able to comment what actually is happening. It has been happening from 2017, and now this AFC has come in 2019-20. So we have to see what has happened before they came in, also what the other agencies have done. Okay. तो हाँ, जो ब्रिगेंजा सर पूछ रहे थे कि एक सिस्टम था जो एनुअल उसको इंक्रीज किया जा सकता था, ये जो क्लस्टर्स है, तो आपको लगता है कि ऐसा स्कोप है जो आपके 200 क्लस्टर्स है, तो क्या आपके कंपनी ये ऑप्शन रखती है कि अगर गोवा गवर्नमेंट या कोई गोवा अथॉरिटी या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो अगर वो इंक्रीज करे आपके क्लस्टर्स को, मतलब 10% या 20%, मतलब 200 या से 250 क्लस्टर्स अगर करें, आपको लगता है ऐसा कोई स्कोप है? अगर सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करने के लिए। ओके। अगर वहाँ से हमको कोई आता है कि आपको क्लस्टर बढ़ाने या लोगों को और जोड़ना चाहिए, तो लोगों को जोड़ने के लिए क्लस्टर हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके ओके। So yes, it seems yes, the AFC company is not. There is no limit from their side. If the government or the Goa, the right department, if all our farmers approach the right department and ask for this, then I think it's in the decision of Goan authorities to increase from 500 to maybe 600 clusters, and that 100 clusters distributed to all these 3-4 companies, or whatever, if it has to be increased to 700 clusters. So I guess that action can happen from the Goa state. Any other points? What I believe needs to happen is for Nestor and others who are interested in this scheme, Paramparagat Krishi, hello, to make a written application to the Director of Agriculture. Sorry, the Director of Agriculture, and give a copy to the Zonal Agriculture Officer in writing, keep a copy with acknowledgement, and we should hope that by 1st of April 2021, we should have additional quota, because there is a demand. The demand should be on record. Right.
So now we just have 10 minutes left. So I'll just take a few questions from the audience. You know, we have to take their Q&A. There are about 6 questions. So now this is from Shwetakshi Mishra. Good evening, sir. I am Shwetakshi Mishra from Dempe College of Arts and Science, Panjim. My question is, does the sample analysis also include the test for heavy metals in the soil? कमल सिंह जी, जो आप सॉइल जो टेस्ट एनालिसिस करते हो आप सॉइल का, उसमें क्या ये भी चेक करते हैं हेवी मेटल्स उसमें कितना है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, जो एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है हमारे ऑडियंस से कि जो आप सैंपल लेते हैं सॉइल का टेस्टिंग के लिए, क्या उसमें आप हेवी मेटल्स के लिए भी चेक करते हो? रंजी एनालिसिस के सब प्रोसेस है हमारे पास में, लेकिन उसमें क्या क्या जांच होती है ये उसमें एक लिस्टेड होता है, वो मेरे पास में नहीं होगी, तो मैं प्रोवाइड करने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ। एनेबल का एनालिसिस होता है। ओके, तो वो एनालिसिस के आपके हिसाब से उसमें कोई हेवी मेटल? मेरे हिसाब से नहीं सर, उसमें गाइडलाइन है, गाइडलाइन के थ्रू जाता है वो। अच्छा, ओके ओके, तो आपको उस वो गाइडलाइन के थ्रू आप हेवी मेटल का आपको जानकारी नहीं है उसमें है कि नहीं टेस्ट? ओके, ठीक है। नाउ तो अभय मोहरे से, which schemes are now running to support organic farming by government and non-government? So this is, I think, yeah, open to other panelists. It's not specific to AFC. Miguel, could you share some light on that? Which schemes are now running to support organic farming by government? And if there are now some non-government schemes also to support organic? Basically, the government has got a number of schemes to support organic farming, from composting to using biological pest management to going for organic practices, organic manures, and of course the Paramparagat Krishi Vikas Yojana, which is a consolidated scheme. So the person has to contact the concerned zonal agriculture officer for schemes other than PMKY, because PMKY has been given to service providers. The other schemes are being operated directly by the zonal agriculture officer. And what is important is that the person should have a Krishi card to avail of any subsidies now. That is mandatory. You have to have your land document, whether you own it or you have inherited it, you have co-inherited it, you have taken it on lease, or someone has given you NOC to cultivate the land. There are 26 different kinds of Krishi cards, which is a smart card, which enables you to access schemes depending on what is your right to the land and how much land you have. You can get in lakhs for buying a tractor if you own 2 hectares or 10 hectares of land in your name, and there is no other encumbrance to it as having a partner or co-sharer, or you have got the documents from all. So various documents are required for various kinds of things, but you must have a Krishi card which has 2 things. One is your name, address, and where your property is located. Second, it has a bank account which is only yours. It's not a joint account. It is only your account. It has your biometrics, your thumb impression, and your cornea image of the eye, so that nobody else can encash it, and the money will go only to your account. So there is a complete link. Earlier, subsidies were given also to farmers who did not have a Krishi card. Krishi cards have been around from 2014. I think 6 years is a long enough time for people to have done, though in Goa only 35,000 persons are known to have done their Krishi cards. There'll be more than 1 lakh farmers. So the others need to do this procedure, and you cannot say the procedure is long, it takes 2 months, 3 months to do it, because if you want something, you have to work for it. The simple principle is, don't itch for anything that you're not willing to scratch for. So you have to do a little bit of work, and once you have the Krishi card, then you can access the subsidies. Without that, you will not be able to do. So first step, every person should have a Krishi card. Krishi card, okay.
either go online to dir-agri.goa.gov.nic and access the information, or go to the zonal agriculture officer. If the zonal agriculture officer is busy, there are at least 2 or 3 assistant agriculture officers. There are Kisan Mitra, the KM is there in every office to help the farmers to do their process. And they have the data entry operator, the DEO, who does your Krishi card. So visit, all the offices are open. Only the people from Marmagao Taluka have to go to Salset. They have to go to Margaon to the process. Otherwise, every Taluka, including Darbandora, has a zonal agriculture office where you can access this information. There is no difference whether you are North Goa or South Goa, except your district agriculture officer is in Margaon. You don't have to come to Panjim. And the same schemes are there all over. Service providers for PMKY are different. So according to your Taluka, you'll have the officer. Okay, thank you, Miguel, for that information. Next question, कमल जी के लिए है. हेलो कमल जी, हाँ आप लाइन पे है. तो अभय मोहरे आपको पूछ रहा है, कमल सर आप मार्केट प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं क्या फार्मर्स के लिए? यस सर, मार्केट प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करते हैं हम प्रोडक्ट को, और उसको लॉन्च करने के बाद में उसको मार्केटिंग आगे प्रोडक्ट होता है. प्लेटफॉर्म के लिए वैसे स्कीम में क्या है कि सर प्रोडक्ट रेडी टू मार्केट रहता है. स्कीम में जो है वो प्रोडक्ट रेडी टू मार्केट रहता है. अब उसमें अगर कोई बायर और लेना चाहता है तो एक मिल सकता है उसको. तो अभी फिलहाल उसके लिए सर ट्रेड फेयर वगैरह या कुछ भी फेयर और ये सारा चीजें स्कीम में रहता है. और प्रोडक्ट को सैम्पलिंग के लिए हम लोग पैकेजिंग भी करते हैं और उसको रेडी टू मार्केट भी करते हैं. तो अभी के स्टेटस में आप कुछ मार्केटिंग कर रहे हो किसी फार्मर्स के लिए? अभी तो फर्स्ट उसको सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उसके बाद में अभी जाएगा ना सर. ओके ठीक कोई सर्टिफिकेट की हम कैसे उसको लॉन्च कर सकते हैं? ओके, मतलब वो पूरा 3 साल के बाद होगा फिर? जी, फाइनली तो 3 साल के बाद ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट होता है ना. ओके. So that is the reply. Abhay More, they like Mr. Braganza also confirmed that it requires 3 full years to get the certification of organic, because that time period is required to prove itself. And after 3 years, that means they will be in a position to market that product through their platform. Right now, they are just giving a support kind of information and supporting the farmers, and they are working on the soil right now. Okay, not on the product. So product will happen, I think now already 1 year over, 1.5. So we have to look forward to another 1.5 years before EFC will help with the marketing of these products, because they can do it only after they have certified it, which is the logical thing. Now I will look for a last question because we are already up with time. So okay, maybe I'll just a simple question from Jacqueline Fernandez, open to all our panelists. Obviously, this program did not work out well for the practicing organic farmers in Goa. So, because some of them have got left out. So, what is the future of organic farming in Goa? Nestor? Actually, can I take that? See, the way we are getting all different types of sicknesses, it's high time people start thinking about eating organic. I mean, the amount of chemicals that are being used everywhere, it's pretty bad for our health. So I think we got no option. We have to go in for organic. Or at least we have to go in for a start. Means it's not so easy to convert back to organic very fast. At least for a start, stop using pesticides straight away. There are a lot of organic alternatives to chemical pesticides. We should start using that. We got no choice actually. Time is running out. And it is high time that we shift to organic. There's no time left. It's come what may, it has to be done. So that's from my experience. And though yes, you so might, though your output what you're speaking about is the need for it. We need to do it. You're speaking about the need for it. And yes. What does she want to know? Yes, so we need to do it. And what? Yeah, so she's asking what is the future of organic farming in Goa, meaning that it is up to us to continue it. It is up to us.
It is up to the farmers to do Yeah. it. It is up to us. You cannot depend on somebody else. You cannot depend on the government to force you to do organic. That's my experience. You cannot force So- somebody to do something. It is up to us to do it. If you give up So I without think trying, it's too bad. Yeah, so I think the bottom line question is very simple here. For those farmers who did not get in the scheme, right? How can they should No, I'll just tell go you ahead what. and do their best? Besides that, there are some different schemes of the state government. They give you money up to 10,000 Okay. rupees to buy organic fertilizers like vermicompost. Then there are schemes to give you soil conditioners like rock phosphate, uniphos, that is muriate of potash. You get up to 500 kgs per hectare. Then there are schemes to make a progressive farmer to make a model farm. There are schemes to get some local farmer markets to be organized. I think they give up to 1 lakh rupees if you can organize a local farmers market where organic. Mr. Miguel has already taken the lead, Wonderful. and Mr. Miguel has already taken the lead. He is to conduct one at Dasya and Porvorim, which was very well patronized by a lot of this. So it is up to Yes, us I to do think it. the screen is We cannot wait frozen. for the government to do that. It is up to us to do it. Yes, yes. Wonderful. Miguel, what would you like to say about this aspect, those farmers who couldn't get in, and what can we do for the future of organic farming in Goa? No, not just for organic, for any farming that you want to do in Goa. I think Nestor and I are agreed on it, and there are many others also who agree with this view. You go ahead, decide what you want to do, plan and do it. Whatever subsidy you can get from the government for what you want to do, take it. Because the government is giving a subsidy, Don't do that. something. People have gone in for cocoa earlier, then they've gone Vanilla. for tea, they've gone for Bixa, they've gone for oil palm, and all these have flopped. Big subsidies normally come for things which don't work. It's just to attract you to do it. So don't go for that. There are subsidies for growing rice. There are subsidies for growing mangoes. There are subsidies for growing cashew. There are subsidies for growing vegetables. You decide what you want to do and take those subsidies which are available. And don't only look at the subsidy from the point of view, I'm growing this crop. Because there is a separate subsidy scheme for irrigation. There is a separate subsidy scheme for greenhouses. So you find out which schemes are there, which schemes are operational. Like many people went for polyhouses because they were 100% free. Today, they don't know what to do with those polyhouses. They're occupying space. Most of the polyhouses which are there in other than floriculture are not used at all. And those which are floriculture, now, COVID, they have become non-functional. Many of them are shifting to vegetables and such things because nobody is buying flowers today. Today, everyone is worried about food. There are no big weddings. Earlier, you had weddings in which the decor flowers was of 5 lakhs. Today, there is no wedding. So those 5 lakh worth of flowers are going to sit in your nursery or in your project. So find out what is going to sell and do it. 5 years back, even 3 years back, I would have recommended anyone to go for orchids. Today, those who have got orchids are trying to find people to buy their plants off because there's no demand for the flowers. So we have to look at the market. We have to see what is our strength and what we can do and do it. So that's it from me. Go ahead and do what you want. Yes. And do a Krishi card to access your subsidy. But just please do not do something just because you're getting a subsidy from it. It doesn't work out. A subsidy is just to give you the initial boost. But if you're going to see, I'm getting a subsidy for a particular scheme and doing it, it's not going to work. And I finally thank you, Miguel, for coming and joining us today against all odds and finally making it. Thank you, Nestor, from your location too, for being with us today. And कमल सेन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये वेबिनार में आने के लिए और सब जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया था उसका बहुत शुक्रगुजार है हम. थैंक यू सर, आपका भी कि आपने सबसे बात कराई मेरी, और मैं चाहूँगा हम आपस में जुड़े रहें ताकि और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे आपसे भी, मुझे भी, और भी जो भी गोवा की समस्याएं हैं ये भी हल होती रहे. जी हाँ. Okay, good night everyone. Shubh Ratri.